welcome everybody in my session. There are many people who already know me and they are having high expectations. So please, I keep my hand folded and request to please do not expect high. I am very grounded and I'm going to talk very grounded things. Apart from science, what science teacher needs to have? For that, what the first requirement is, according to you, table 1, for a good science teacher, what are the requirements? You are having the page, right? Yes, Please take your page. Everybody take your page. On a very active note, since we have gathered here, so we are going to use the time in a most productive way, as far as possible, of course. And when we talk of possibility, even sky is not the limit, right? So let's begin with, being a science teacher, what do you expect from yourself? What are the most desirable characteristics you can have? Just two points, everyone in the page. I will be discussing it. Everyone has to write their own. This is individual activity. Just two activities. Activity. The 2 points. Only the 2 points. And 2 minutes for that. Yes. 2 points you have to write. No point, madam. Just 2 points. Or I have to mention name or here. It is your sheet. It is your sheet, so you may write your name. You will be presenting your sheet. Okay. Yes. Now, turn the page. Turn the page. एकदम आपने यहाँ पर लिखा है और इसको आप ऐसे टर्न कर लीजिए पीछे साइड प्लेन साइड में पुट अ डॉट इन द मिडिल इन द मिडिल एकदम शीट के बीचों बीच आप डॉट लगाइए नहीं इनॉग्रेशन मैम कर दी ओके आई गॉट 1 point. Done? Now, you have to just an inch. When I will say, move 1 inch. So always, the unit will be inch. Okay? Approx. Direction. Right? I will tell. Now let's see. You have to be very attentive or not attentive. If you will miss, you will not ask. कुछ नहीं पूछना है. Whatever you are doing, you will be doing. Right? Okay? So let's start? Yes. Okay. So we are doing this. Move 1 unit up. 1 unit right. 1 unit up. Again. 1 unit left. 1 unit left. No interruption. 1 unit left. 1 unit up. 1 unit right. 1 unit right. 1 unit up. 1 unit right. 1 unit down. 1 unit right. 1 unit down. 1 unit right. 1 unit down. 1 unit again down. 1 unit down. Again 2 times. सभी लोग अपना शीट ऊपर रखें. ऐसे करके सारे लोग दिखाएंगे.
नहीं बनाया वो लोग डॉट दिए हाँ डॉट दे दिया डॉट नहीं देना तो मूव करना हाँ हाँ कौन सा स्ट्रक्चर इधर है भी सही है केवल हाँ हाँ में तो पहले तो मैं सब लोगों को स्काउट क्लैप फॉर योरसेल्फ। मैंने ये देखा कि जस्ट सभी लोगों का अटेंशन यहाँ पर है, लिसनिंग स्किल में कोई इशू नहीं है। मतलब कुछ लोग कंफ्यूजन में रह गए तो दैट हैज टू बी, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ बट नेवर माइंड। आज आप जब अब शीट को उल्टा कीजिए, फिर से शीट को उल्टा कीजिए। अब उस शीट में अब है ना फॉरगेट योर फैमिली, फैमिली को एकदम फॉरगेट कीजिए और इस शीट में यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर 2 colleagues, रैंडम 2 colleagues। रैंडम, यस रैंडम। आई एम जस्ट सर प्लीज बोल बोल के नहीं कीजिएगा। देख लिया? ठीक है। दूसरी में इसमें अब आप कुलिक्स को लिखने के बाद अब आपको ये सोचना है, राइट, ये सोचना है कि ये जो 2 कुलिक्स हैं आपके किस तरह से आपको परेशान करते हैं। नहीं नहीं करते हैं। नहीं मतलब nobody is perfect, परेशान नहीं करेंगे। nobody is perfect, right? कुलिक्स इन दैट सेंस कि मैम नहीं परेशान करते हैं तो नहीं लिखा आपकी बर्थडे नहीं के ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग कॉर्पोरेट बड़ा आप गिरी जरा है। सोचिए ध्यान से। देखिए मैंने देखिए क्या हमारे कुछ नहीं हो रहा है कि जब आपने लिखा कोऑपरेट करते हैं। कॉर्पोरेट करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि यू हैव टू राइट रैंडमली 2 people, ठीक है। मैंने कुछ नहीं कहा कि उस रैंडमनेस में क्या होना चाहिए। तो मैडम वही था जो फेवरेट। Got it? अच्छा ठीक है, फाइन। लेग पुलर्स होंगे। अब आप लोग को परेशानी हो रही है कि नहीं हमने तो अच्छे, अब जो दिमाग में पहले किसका नाम आया जो आपको अच्छे लगते हैं, अच्छे राइट, पहले किसका नाम आया अच्छे लगते हैं, तो आपने उन्हीं लोगों का नाम लिखा जो अच्छे लगते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम आप लोगों ने मुझे बहुत कोऑपरेट कर दिया, थैंक यू, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि नहीं यही होने वाला है कि आप जब नाम लिखेंगे तब आप वैसे कोलिग्स का नाम लिखेंगे जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, राइट। तो इरिटेट करने वालों का नाम आपने नहीं लिखा, आपने लिखा जो आपको पसंद। नाउ माय क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे वंडरफुली आई गॉट। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ यू आर थैंकफुल टू देम, that how they have affected your life, how they have made you a positive person, you have evolved in a good human being, right? तो बस 2 पॉइंट लिखना। फॉर एवरीवन। हाँ, two people आपने लिखा ना? तो बोथ 1 point for each। हाँ 1 point, no 2 points for each। हाँ, क्योंकि you know we are wonderful creation, we have so many characteristics, we have so many things that we contribute to the society and receive from the society as well. It's a two-way. Every action Has Has equal and opposite reaction। न्यूटन्स थर्ड लॉ। आप उसको रखे रहेंगे लिखने के बाद। और Activity is very nice.
सब लोग कितना सोचते हैं अपने दोस्तों के बारे में, और जब पॉइंट आता है कि अरे बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उसमें से 2 ही लिखना है, 2 ही लिखना है, बहुत सारी अच्छी बातें। So hello everybody, this is Ritu Saxena from Dr. GL Datta DAV Public School, presenting my topic, importance of gratitude among science teacher or among human being as individual. क्यों जरूरत है आज सवेरे से, और ये टॉपिक हम आज क्यों मैंने ये चूज किया, इसका देयर आर n number of reasons. First reason कि fun with science, we are having so much of activities, you are involved in so much of activities, and you will be doing that in the next sessions, Coming sessions in coming sessions. लेकिन एज ए साइंस टीचर आप ये बताएं सवेरे से कोई 2 चीज, फिर उसमें लिखिए कोई 2 चीज जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, कोई 2 चीज, एनीथिंग, 2 चीज। और अगर आप क्लास में हैं तो उसको कैसे प्रैक्टिस करा सकते हैं, क्योंकि आज जो हमारा टेक्स्ट बुक है, बी इट साइंस, बी इट सोशल साइंस, बी इट इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इवन सारे चैप्टर्स में वीबी क्यों रहता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। Yes. क्यों, तो फिर क्या जरूरत है? जरूरत तो कुछ है, क्योंकि समटाइम्स की कॉन्ट्रीबिंग वन द पैटी थिंग्स, हमें वर्कशॉप में आना पड़ा, धुंध में जाना पड़ा, सवेरे उठना पड़ा, दूर चल के आना पड़ा, और क्या क्या ना पड़ा, है ना? Let's come out from these small things. आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद, बहुत छोटी छोटी चीज है। अभी जिसके लिए आप कोशिश करके कितना क्रिप कर रहे हैं, and then you will go back home, then you will realize कि बात करेंगे सब लोग, प्रो कॉन्स सारा बात करते हैं, जनरल कन्वर्सेशन अमंग आप लोग अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, क्या मजा आया क्या नहीं मजा आया। तो ज्यादातर है ना, अगर नहीं मजा आया तो मतलब उसको और महिमा मंडित करते हैं कि बिल्कुल मजा नहीं आया, लेकिन आपने जो मजा किया उसको थोड़ा सा महिमा मंडित करने की जरूरत है। एक एक्टिविटी होना चाहिए था जो मैं अब करने वाली हूँ कि आप फ्रेंड्स बनाना, ये जो जगह है आपको फ्रेंड्स बनाने का एक प्लेटफॉर्म देता है। तो जब ग्रुप बनता है ना, हम लोग सेक्शन डिवीजन करते हैं। सेक्शन डिवीजन में क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे नए नए लोगों से मिलते हैं, राइट? तो फिर हम लोग है ना, इस ये आपने लिख लिया, 2 चीज तो आपको लिखना था कि क्या चीज आपको पसंद है, राइट? आप सभी लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे। नहीं, वो लिखना था 2 चीज जिसके लिए अभी लिखना था। हाँ, आप लोग खड़े हो जाएं प्लीज। 6 टेबल है ना, 6 टेबल है, आप काउंट कीजिए 1 2 3 4, ठीक है? 1 2 3 4, अपना नंबर याद रखिए। 1 2 3 4, राइट? 1 2 3 4, राइट? 1 2 3 4, राइट? 1 2 3 4, अरे वाह, कोई इशू ही नहीं है। कैंडिडेट 2 बच गए, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। टेबल नंबर 1, सारे 1 वाले टेबल 1 पर आ जाए। जिनको नंबर 1 दिया गया, जिनको नंबर 1 दिया गया वो नंबर 1 पर आ जाए, टेबल नंबर 1 पर। And rest please leave the 2, table. हाँ, लीव दैट। 2 वाले 2 पर चले जाए। Roll number 2. 2 वाले 2 पर रह जाए। सब कुछ ले सब कुछ ले रहे हैं, लेके आ जाए। लेके आइए। Document Take लेके your आओ. things. Big bag and package. Yes, bag and package. वन वाले के One वाले इस टेबल पर. 2 वाले टेबल नंबर 2 पे। 2 वाले 2, 3 वाले 3, 4 वाले 4, Rest. 5 वाले 5, 6 वाले 6। 5 नहीं थे. 4 वाले आ जाए। उसके बाद जो बच्चे वो यहाँ खड़े हो जाए, जो बच्चे वाले हैं वो खड़े हो जाए।
वन है, आप एक बैठिएगा। आप एक बैठिएगा। टू उस टेबल पर। हाँ अच्छा, ये टेबल कम पड़ जाएगा ना? हाँ ये ज्यादा हो गया। Make them come, जो 4 तक एडजस्ट करके वो बाकी बैठ को जाइए इधर आप, बुलाइए। 4 वाले बैठ जाए। नहीं नहीं, सारे लोग 4 एक टेबल बच जाएगा हमारा। दो टेबल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 8 लोग हो गए, 8 लोगों में फिर से हम लोग करा देंगे, हो जाएगा। जो बचे हैं ना, टेबल से लिखने में दिक्कत हो जाएगा नहीं? नहीं चार एक एक को निकालो। अच्छा ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, कुछ नहीं करेंगे। बस अभी बैठे हैं ना, अभी करवा देते हैं। हाँ अभी बैठे हैं। 5 6 5 6 करवा दीजिए। चलो 5 6 आप इधर पे आ जाइए। 1 ठीक है, 1 पे आ जाइए। सुमन सर, आप इस टेबल पर आ जाइए। नहीं 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 नहीं, मैं जिनको पहचान रही हूँ एटलीस्ट मैं वो नहीं करूँगी। इंदू मैम को इधर इंदू मैम को ले लीजिए। नहीं 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 सर, आप इस टेबल पर जानते हैं ना? अरे यहाँ टेबल पे लिखो। वही तो, change is the only permanent thing. Please sit here. Change is the only permanent thing in life. वही चीज तो है जो शाश्वत। आ रही है ना? आ रही है मैम, आ रही है। 3 रह गए ना? सुमन सर, टेक माय वर्ड्स, यू गोइंग टू एंजॉय। ठीक कोई बात नहीं। वहाँ 3 रह गए, नहीं 4 हो गए। हम लोग सारे एक ही हैं, सब एक ही स्कूल से, मतलब एक 5 एक ही ऑर्गेनाइजेशन एक से। 5 है। लगातार कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और जो हमारे पास कमियां हैं, जो हमारे पास नहीं है, उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। उसके बारे में सोचते हैं कि गाड़ी मिल जाती, एसी मिल जाता, गर्म पानी मिल जाता है, अच्छा जूता अच्छा है तो थोड़ा सा और अच्छा मिल जाता, थोड़ा कम पुरानी जिंदगी में जो स्ट्रेस था वो स्ट्रेस से निकल आए हैं तो नए स्ट्रेस के बारे में सोच रहे हैं। तो आप लोग हमेशा ये चीज सोचते हैं कि आई विश कि मैं, जो मुझे टेंशन है, बहुत सारे लोग बीपी और शुगर और पता नहीं क्या क्या चीज, सारे का एक वजह, वन ऑफ द रीजन इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होता नहीं है, हो जाता है, करते नहीं है, लेकिन इट हैपेंस कि स्ट्रेस, काश मैं स्ट्रेस को अच्छी तरह से हैंडल कर पाते। जो नेगेटिव इमोशंस है, जैसे अभी सीट जो चेंज हुआ तो हम लोग कंफर्ट जोन में आ गए कि हम लोग साथ में बैठे हुए थे, अच्छा बॉन्डिंग डेवलप हो गया था और हम लोग को अब कंफर्ट जोन से निकाल दिया गया है। तो वो जो इमोशन है ना, जहां आप सोचते हैं कंफर्ट जोन से बाहर आप खुद से निकले, दैट इज डिफरेंट। लेकिन जब आपको निकाला जाता है, जैसे इस ट्रेनिंग के लिए निकाला गया, जैसे इस जगह पर सीट में चेंज इन्फोर्स किया गया, तो यू हैव दैट रिफ्रेन करते कि ना, छोड़ दिया जाता, वी आर कंफर्टेबल। रिएक्शन देने, गुस्सा आया, देन एंड देयर रिएक्शन दे दी, एंड लेटर रिग्रेट, छोड़ सकते थे। ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं था, लड़ाई करने की जरूरत नहीं थी, किसी को बुरी बात बोलने की जरूरत नहीं थी, बच्चे को डांटने की जरूरत नहीं थी। इट कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे। तो इमोशन को कंट्रोल, या फिर बहुत जल्दी लोग ब्रेक डाउन कर जाते, तुरंत इमोशन को कंट्रोल करते कि काश इमोशन को मैं कंट्रोल कर पाता या कर पाती जब ऐसा सिचुएशन आता। अगर आप इमोशन को कंट्रोल कर ले तो एक ये होगा ना कि आपकी वीकनेस को लोग नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि आपका चेहरा है ना, एक एकदम चलता फिरता मूवी है, मतलब एवरी इमोशन इज कमिंग एंड गोइंग। आपका चेहरा देख करके आपके दोस्त जो क्लोजर वन है एटलीस्ट, वो आपका चेहरा देख के बता देंगे यू आर गुड, यू आर वेल, यू आर एंग्री, यू आर सैड और वॉट एवर। तो इमोशन कैसे, वो थ्रू इमोशन दे आर रीडिंग थ्रू योर फेस, इमोशन देख करके ही बताते। तो वो अगर कंट्रोल कर लें तो यू आर एबल टू बी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। यहाँ पर इमोशन ये नहीं है कि आप अपने इमोशन को ढक करके किसी को डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, आप स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं बाय कंट्रोलिंग इमोशन। किसको खुशियां नहीं चाहिए, ज्यादा खुश हो पाते, ज्यादा फैसिलिटी मिल पाती। यस, खुशी होने का अलग अलग डेफिनेशन सब लोग का है। कुछ लोग घूम करके खुश होते हैं, कुछ लोग
पढ़ करके खुश होते हैं, कुछ लोग बैठ करके, कुछ लोग सो करके। तो अपने चॉइस का चीज मिल जाता है तो ज्यादा हम लोग खुश हो लेते। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास, सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी है कि काश हमारे पास 24 आवर्स, पता ही नहीं चलता सवेरे हुआ शाम हुआ। 23 को हम लोग हैप्पी न्यू ईयर जब तक बोलते 24 हैप्पी न्यू ईयर आ गया। कितना तेजी से टाइम, अब मतलब एट दिस एज, जिस एज ग्रुप में हम लोग ऑलमोस्ट आगे पीछे थोड़ा बहुत हम लोग हैं, ये वाले साल तो ऐसे गुजर रहे हैं, लग रहा है पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चल रहा है। टाइम, बच्चे इतने से थे इतने बड़े हो गए और मतलब पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे निकल गया। हम लोग के पास कुछ ऐसा रहता कि हम लोग टाइम को थोड़ा सा बना लेते, थोड़ा लेते, हमारे पास टाइम थोड़ा बच जाता। टाइम मशीन ले आना चाहिए। टाइम मशीन ले आया, वो मे बी साइंस में कोई सा भी साइंस अभी ये करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। बस बस हम लोग अभी, हमें जरूरत है कि ये सारे चीज जो आई विश आई कुड, ये सारा आपके अनफिलफुल्ड डिजायर्स हैं। अनफिलफुल्ड मतलब ये विश है, कल्पना है कि ऐसा होता, काश ऐसा होता। क्या हो रहा है अल्टीमेटली ये कितना लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, ऐसा मैं, आई विश आई कुड वेयर बेटर, आई विश आई कुड लूज वेट, आई विश आई कुड लुक ब्यूटीफुल, आई विश आई कुड, एंड नंबर ऑफ दिस लिस्ट गोज ऑन। अब आप पेज को पलटिए। पहला क्वेश्चन क्या था? Need of science teacher. नीड ऑफ साइंस टीचर। आई विश आई कुड हैव। कल साइंस टीचर में हम लोग बहुत सारी बात कर रहे थे कि बहुत सारा चीज बच्चे खुद भी करते हैं। तो आई विश एज ए साइंस टीचर, टेबल 1 एक एक आप लोग आपस में डिस्कशन कर ले, सारे पॉइंट्स को जोड़ करके 5 मिनट्स टाइम, 5 मिनट्स आप लोग आपस में डिस्कस कर लें। कोई एक बंदा खड़े होंगे और बताएंगे आई विश, जो भी साइंस टीचर का आप लोगों ने अलग अलग जो एट्रीब्यूट्स बनाए हैं। साइंस टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? हाँ, जैसे कम्युनिकेशन स्किल लिखा है ना, लिखा था वही कम्युनिकेशन स्किल को कैसे आप डिफाइन करेंगे? नहीं लिखा है। मैम आप बोलिए, लिखिए। कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। हाँ हाँ, 5 वो पॉइंट लिखाइए ना। कम्युनिकेशन होना चाहिए, कीन ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक साइंटिफिक नहीं, इसका ये टॉपिक है। अपने नाम के सामने डेट कल जैसे हालात चल रहे थे ना, उस हिसाब से ये बहुत सही है। कुछ पॉइंट्स कोइंसिडेंटली 5 पॉइंट ना 3 गो साइंटिफिक टेम्परामेंट हो गया। अच्छा, ये साइंटिफिक बोल रही थी। अचानक से सब लोगों में ना वो सारा चीज, जो चीज को वो लोग क्रेव कर रहे हैं ना, थोड़ी देर से देखिएगा, सब लोग अपने अपने हाँ अभी ये सबको स्टिमुलेट कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है। कोई भी मतलब सब लोग अपने कुछ लोग सोचना ही नहीं। हाँ, एक्टिंग एंड it was needed. Coincidentally, you means took this. Without knowing, you took this. 2 more minutes. 2 minutes more. बस 2 मिनट बचे हैं और आई एम श्योर एज अ टीचर यू आर हैविंग प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू स्पीक अबाउट। हु इज रेडी? हूएवर इज रेडी, नाउ लेट्स बिगिन। अच्छा, उन्होंने पहले कह दिया था कि उनको पहले दे दिया जाए टर्न। इधर भी हो गया है। हाँ, सबका हो गया। मैम आप साइन किए हैं? Movement please, let's
आप लोग सभी लोगों ने रेडी कर लिया है, तभी हम उनका सुनेंगे ताकि सभी लोग सुन ये से भी पाए। हो जाएगा ना। ताकि सभी लोग सुने, सभी लोग एक दूसरे का सुनेंगे। यहाँ से बुला लीजिए, यहाँ से ऑल चलो। आर रिसोर्स पर्सन, 5 मिनट। कुछ नहीं है, सबके पास बहुत सारी बातें शेयर करने के लिए दे दिया जाए तो मैम अलोन और यू अलोन कैन स्पीक फॉर आवर्स एंड आवर्स। यस मैम प्लीज। My first point, we have to create interest and or develop interest among students to learn science. Second, relate the science to daily life. ये दो चीज हुआ। Good communication skills, good Okay. logical skills. Teachers should be innovative and creative and good problem solving. ओके मैम, थैंक यू। मेरे पास अगर यहाँ पर बोर्ड रहता ना, तो इसमें व्हाइट बोर्ड निकाल लीजिए ना। नहीं हाँ, वो बोर्ड नहीं ना, फिर मुझे ये भी चाहिए था, बोर्ड रहता तो वो सारे पॉइंट से हाँ, वो हो जाता है। उन्होंने 4 पॉइंट दिया, सभी लोगों ने सुना। यस यस। अगर वो 4, अब जो नेक्स्ट टेबल होगा वो जो 4 पॉइंट है, अगर वही पॉइंट है उसके अलावा कुछ नया पॉइंट है तो बोलेंगे। यस मैम। Yes, a science teacher must be a skillful person having scientific attitude. स्किलफुल पर्सन, साइंटिफिक एप्टीट्यूड। A science teacher must इसके बाद have बोलिए। keen observation. यस ऑब्जर्वेशन। ओके। Okay? Science teacher must have to think technically. ओके मैम, क्या बोलेंगे आप उल्टा सीधा लिखें। Then a science teacher must be a good facilitator. हाँ। A science teacher must have to develop scientific temperament हाँ, वो साइंटिफिक among the students. The atmosphere in the Okay. classroom. There is need to work on the daily life experiences and examples. Okay. There is need of lab on wheel so that we must teach the poor students also. Lab on wheel help us to teach the poor Slow learners. students. Slow learners. You can see the time. मतलब वहाँ पर चीज निकल के आया कि साइंस टीचर को एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्किल वगैरह होना चाहिए। यहाँ पर जिस निकल के आया कि साइंटिफिक टेम्परामेंट तो होना ही चाहिए और सारे साइंस टीचर को लैब ऑन व्हील्स को प्रैक्टिस करना चाहिए। राइट, यहाँ पर ये निकल के आया। और इस दोनों के अलावा कुछ नया है तो Always enter the class taking something अच्छा, which makes student become curious. हाँ, मतलब कुछ टूल लेकर टीचर लेकर के जाना चाहिए लगे कि बच्चे कि आज yes, yes, कुछ नया बता। बिल्कुल, अगर नहीं कुछ तो अगर And in cheerful mood. यस कभी कभी टीचर्स Happy बहुत classroom. टेंशन घर का सारा Yes. टेंशन सर में ले करके क्लास में जाते हैं और 2-3 थप्पड़ लगा देते हैं। तो कम से कम ये नहीं होना चाहिए। आपके पास जो भी टेंशन हो उसको घर में रख के स्कूल में आए, एकदम हंसी खुशी जाए और कुछ नया चीज लेके जाए। बिल्कुल हैप्पी ताकि cheerful, मतलब टीचर नीड्स टू बी cheerful. cheerful and they Smile all the करने की teachers पैसे नहीं लगते। must have a smile. अगर आप टीचर हैं तो बोलिए, आपके बोलिए। पास नॉलेज होना ही चाहिए, स्किल तो होगा ही। डेवलप कीजिए, अपडेट कीजिए अपने आप को Okay. और हमेशा हंसते मुस्कुराते बढ़िए क्लास। हाँ। मतलब यहाँ पर जिस निकल के आया हैप्पी टीचर। हाँ, हैप्पी Happy teacher, smile face. वेरी नाइस, Happy teacher, happy class. अब ये 4 में से आपके पास कुछ नया है तो वही चलिए नेक्स्ट। नया हमेशा रहता है सर, नया हमेशा कैसे नया रहता है? रहता है, नया कुछ ना तो कुछ करेंगे। नया रहना ही रहना है। हाँ सर, मैम प्लीज। क्लासरूम में डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होना चाहिए। वेरी गुड, nice. वेरी गुड। सर नया निकल कर नया आया। निकल के आया सर, आप पहले से ही जवाब दे दिए ग्रुप की तरफ से, जबकि ग्रुप के पास था कुछ नहीं। तो ग्रुप एक्टिव सर, दिस इज इट माय डियर पार्टिसिपेंट्स, रिसोर्सफुल पर्सन। मैं इस बात को जरूर कह दूं कि ये हम लोग ये ग्रुप बनाया गया है सो दैट वी कैन डेवलप डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। मतलब सारे लोग टीम वर्क, हम लोग स्कूल में भी काम कर रहे हैं तो दैट इज अ टीम। मैडम बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चों के पास नहीं होती हैं, जो हमें नहीं पता नहीं होते, हाँ, और बहुत सारी होती है हमें जो हमें नहीं नहीं पता पता। होता। सही वो भी पर ठीक है, डिसिप्लिन हो, हाँ। लेकिन फिर भी वो बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख रख सके। और बच्चे भी इसको सुन सके, ऐसा
ऐसा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए क्लास में वो आ कि गया, सर। जो हम बोल रहे हैं नहीं हम दूसरा चीज बोल रहे हैं वो कैसे बोलेंगे। मेरा जो सुनिए पहले अच्छे से, हम जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं उस क्लास में हमारे और बच्चों के बीच एक मिनट इनके हाँ, बाद ठीक, हम मैम वेरी गुड जो मैम करिए सही है। क्लैप कर कीजिए क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी बात लेकिन फिर से आवाज आ रहा है। थैंक यू मैम। हाँ नेक्स्ट According to other points, पॉइंट्स it should be learning by doing method थोड़ा होना चाहिए क्लास में। ओके लर्निंग बाय डूइंग मेथड और थोड़ा और हम लोग एज अ साइंस टीचर चाइल्ड सेंटर्ड भी रखे हैं उस चीज चाइल्ड अब तो हाँ। चाइल्ड सेंटर्ड और रहना ही available होना पड़ेगा। चाहिए साइंस टीचर को, कोऑर्डिनेटिव होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए जो बाकी हाँ कोऑर्डिनेशन एंड चाइल्ड सेंटर। आज जो भी ये वर्कशॉप ये मतलब एनईपी हो चाहे कोई भी अभी वर्कशॉप या ट्रेनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चल रहा है, दैट इज बेसिकली बिकॉज नाउ डेज आवर एजुकेशन सिस्टम इज नॉट फैसिलिटेटर नॉट टीचर सेंटर्ड, it is child centered and we are not teachers, we are facilitators. Very good ma'am. Yes sir, अब आप लेकिन जब हम क्लास जाते हैं कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन टॉपिक है, जो 6 में भी है, 7 में भी है, 5 में भी है, तो 7 का जो स्टैंडर्ड है अगर उसको हम 5 में पढ़ाते हैं तो हमारी क्लास में 2-4 ही बच्चे हैं जो उसको समझ पाते हैं। तो टीचर में ये होना चाहिए कि हमारे पास खजाना होना चाहिए। अब जिस क्लास में गए उसमें हम उस माहौल में अपने आप को कर लिया और बच्चे भी उससे हमसे एक फ्रेंडली हो गया। जैसे उसको ये नहीं लगे कि सुमन सर एडजस्टमेंट क्लास में आए हैं तो आज कुछ नहीं पढ़ाएंगे, एडजस्टमेंट में आए हैं तो आज बहुत कुछ पढ़ाएंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर 2 चीज निकल के आया कि एडजस्टमेंट को हम लोग एक अपना अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्टेशन हो कि सुमन सर का ही क्लास चाहिए कि वो जब आते हैं तो क्लास में क्या कहते हैं ना कि स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ाते हैं, मैंने टाइम पास नहीं करते हैं, मैंने पढ़ भी लेते हैं और समझ भी नहीं आता समय कैसे चला गया और समझ भी जाते हैं, क्वेश्चन का भी आंसर भी हो जाता है, मैंने हर काम उसी मिड समय में बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाता है। प्ले वे में हाँ प्ले वे में जो है तो ये सारा चीज निकल के आया कि एज ए साइंस टीचर कितना सारा चीज हम वेरी गुड सर तो ये हाँ That's why Suman sir is demanded by the have, students. They have focused at one point that it should be reduce the stress of adjustment. and I have a news कि मैं 30 क्लास एवरी वीक मेरा मैथ पढ़ाते हैं और एक मैथ को हम बोर कर ले जाते हैं। नहीं मैंने डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर। अगर मैथ टीचर 2 टीचर हैं, एक टीचर 3 क्लास लेंगे सप्ताह में, अगर 18 क्लास लेंगे, एक टीचर अगर 30 क्लास लेंगे तो स्ट्रेस तो होना ही होना है। घर में बीबी का स्ट्रेस या मैथ का स्ट्रेस है तो क्या बात करते हैं। In the beginning only I have asked we are not to discuss our family, हम लोग अभी फैमिली को फॉरगेट करना है, राइट? That is मतलब they are important, they are integral. हमारे एडजस्टमेंट इंचार्ज हैं सब। Sometimes we can हाँ बस और कितना लगे। हम request to Rakesh sir to please cooperate because we are here for the discussion. नहीं अच्छा लगा। That this is it कि हमारे पास बहुत सारा चीज है जो कॉन्ट्राडिक्टिव है, so many issues that we need to discuss कि निकाल लेना बाहर। जब पहला प्लेटफॉर्म मिले, पहला अपॉर्चुनिटी मिले, we are not able to control our emotions. This is it. पहला स्लाइड में था कि we must be able to control our emotions. That is very difficult indeed. बोलना जितना आसान है ना, वो करना उतना ही डिफिकल्ट है, इमोशन को कंट्रोल करना। कि थोड़ी देर बाद इमोशन शो करे, हो सकता है कि वो साइज इतना बड़ा निकल के ना आता, जितनी बड़ी बात बन गई उतनी बड़ी बात होती नहीं, राइट? तो इमोशन को कंट्रोल करना, इन द फर्स्ट स्लाइड इट वाज आई रिक्वेस्टेड टू प्लीज ट्राई टू बी अ स्ट्रॉन्ग फर्म एंड a person with a strong character that who is able to control emotions. तो ये सारे जो हमारे साइंस टीचर करते हुए हैं और इन्होंने जो बात निकाल के लाए, तो इतने सारे सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, सब बात में से निकल के आए कि भाई हम साइंस टीचर्स को ऑब्जर्वर होना चाहिए, टेक्नो से भी होना चाहिए, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, डेमोक्रेटिक वे होना चाहिए, प्ले वे मेथड होना चाहिए, चीयरफुल स्माइल मतलब हैप्पी टीचर्स होना चाहिए। यस मैम, यस मैम। साइंस टीचर मस्ट हैव अ पेशेंस। बहुत जरूरी है कि हम टीचर्स में पेशेंस होना, क्योंकि अरे मतलब वी आर आउट का मतलब क्या होता है ना, एक ही काम करते करते और बहुत ज्यादा करते करते हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं, इरिटेट हो चुके, और किसी बच्चे का ऐसा इमेज बन जाता है, वो मतलब चलता चला जाता है, अरे वो बच्चा तुम्हारे क्लास में, आपके क्लास में
बहुत प्रॉब्लम करने वाला। तो वो उस बच्चे का जो इमेज बनता चला जाता है, हमारे एक्चुअली उस बच्चे का इमेज हमारे परसेप्शन में स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है कि हम उसको नहीं बदल सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यस दिस इज क्योंकि क्या है ना, वो क्योंकि हम लोग एक साथ रहते, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हम लोग एक ही तरह के बच्चों को देख रहे हैं, तो कोई कोई बच्चा नोटोरियस कुछ ऐसा होते हैं, डिफिकल्ट चिल्ड्रन होते हैं, आई डू नॉट डिसएग्री विद दैट। लेकिन ये चीज से डिसएग्रीमेंट जरूर होना चाहिए कि नहीं, तुम्हारे क्लास का, आपके क्लास का वो बच्चा आपको प्रॉब्लम देगा, तो वो क्या होगा ना, प्रॉब्लम होने से पहले, आपने फेस करने से पहले आपने एक इमेज बना लिया कि वो बच्चा प्रॉब्लम देगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वी आर टीचर्स एंड वही बच्चा अलग अलग टीचर के क्लास में अलग अलग बिहेवियर करता है। निशी मैडम इज साइंस टीचर ऑफ माय स्कूल, वेरी पॉपुलर, और इनके क्लास में भी ये देखा गया है कि जो बच्चे शैतानी करते हैं लेकिन पता चलता है कि इनके क्लास में सब गायब हो गए। नहीं मैम, कुछ ऐसा है, देखिए कुछ ऐसा होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट मोमेंट सर, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं सर, एक बार बोल लीजिए। जैसे क्या है, आज नोटोरियस नहीं है बच्चे, इसलिए नोटोरियस नहीं है कि हमारे क्लास में सबसे नीचे लेवल का जो बच्चा है वो भी 45% मार्क्स लाता है 100 में। तो कहने का मतलब है कि वो 45 से 60 में कैसे जाएगा, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, जिसको अप्लाई करके उसको अगर 60 में ले जाएंगे तो उसका नोटोरियस भी डाउन हो जाएगा और उसका जो मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो वो हम लोग कर रहे हैं। इसी मैम की क्लास में ये होता है, तो बच्चे उसको क्या करते हैं कि मैंने अच्छे से करते हैं और बहुत जल्दी वो उसको ग्रो अप करते हैं, उसको 60% साइंस में ले आते हैं। लेकिन वही जब हम मैथ टीचर की बैंक टीचर में हम जाते हैं तो मेरे में अगर 58% हुआ तो 5% उसमें बढ़ा। तो ये फोकस होना चाहिए बच्चों में। हाँ सर, इसीलिए है ना सर, एक मिनट, इसीलिए क्या चीज हुआ, जिस्ट क्या निकल के आया कि अगर हम किसी भी बच्चे को, मतलब गुड वाले को बेटर पे लाना है, बेटर को बेस्ट पे लाना है, जो स्लो है उसको मीडियम पे एवरेज पे लाना है, मतलब जैसा इम्प्रूवमेंट रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। अब ये सारा जो कैरेक्टरिस्टिक आपने टीचर्स में निकाले वो सारा आपने देखा, लेकिन आप जिस क्वालिटी को, आप में जो क्वालिटी है एज अ साइंस टीचर, आप उसके लिए थैंकफुल जरूर होंगे। आप लोग उसके लिए जरूर थैंकफुल हो कि आई हैव दैट नैक ऑफ माइंड, या फिर उस कैरेक्टरिस्टिक को जो आप में है, उस चीज को आप और शार्पन कर रहे हैं और उसको इवॉल्व करें, अपने फ्रेंड्स और कोलिग्स के साथ शेयर करें। दिस इज बेसिकली शेयरिंग प्लेटफॉर्म वेयर वी आर एबल टू। अब देखिए इतने सारे लोगों ने शेयर जो किए, सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक थे, लेकिन सारे लोग जब मिल करके आए तो सारा कैरेक्टरिस्टिक एक लंबा लिस्ट हो गया कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होने ही होने चाहिए एज अ साइंस टीचर। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आऊं। अब है कि आप जिस बात के लिए ग्रेटफुल हैं कि आप एक अच्छे साइंस टीचर हैं, आपको कैसा फील होता है जब आप फील करते हैं कि यू आर अ गुड साइंस टीचर, यू आर गुड ह्यूमन बीइंग? आप कैसा फील करते हैं? प्राउड फील करते हैं। हैप्पी। आपके हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है? पॉजिटिव मेंटल पीस। यू आर डूइंग योर वर्क ऑनेस्टली, प्रॉपरली, विद ऑल डिवोशन, राइट? यू आर थैंकफुल टू योरसेल्फ। सबसे पहले है ना, आप दुनिया को थैंक यू बोलने से पहले सबसे पहले हम लोग खुद को और वो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करें जिसके लिए हम थैंकफुल हों, राइट? ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज के लिए, अच्छा मैं बहुत एग्रेसिव पर्सन, आई एम थैंकफुल दैट आई एम वेरी एग्रेसिव। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज पॉजिटिव, नॉट द अदर वे। अब देखिए, अगर आप थैंकफुल हैं तो आप क्या चीज के लिए थैंकफुल हो सकते हैं और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि आपका जो फिजिकल है, आप इसके बाद मैं एक स्लाइड शो करूंगी। कुछ लोग मैंने अक्सर मुझे वो गाना हमेशा वो 2 लाइन ध्यान में आ जाता है कि कुछ लोग हैं जूतों पर होते और कुछ लोगों के पाँव नहीं होते, राइट? अब हम लोग जूते पहने हैं और अच्छे जूते की कल्पना कर रहे हैं कि मेरे पास अच्छे जूते हैं, मतलब दैट बिकम्स कि हम लोग के पास क्या नहीं है उसके ऊपर फोकस ना करके, क्या नहीं है उसके ऊपर फोकस करते हैं और क्या है उसके लिए हम लोग नहीं सोचते हैं। अगर हम उसके ऊपर सोच रहे हैं,
आप है ना इमेजिन कीजिए, आप बच्चों को क्लास में प्रैक्टिस करा सकते हैं ग्रैटिट्यूड। इसका जो इफेक्ट है इतना एम्पावरिंग है, इतना इमेंस है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। बच्चों को एक बार बोलिए, आप एक दिन बिना मोबाइल के रहिए, बच्चों को बोलिए एक दिन बिना बिजली के सोचिए। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं और जिसको आप काउंट भी नहीं करते। यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, यू आर नॉट टेकिंग इट एज ब्लेसिंग। तो उसका जो इफेक्ट जब आप स्टार्ट करते हैं काउंट करना है कि भाई हमारे पास एटलीस्ट इतने सारे एमिनिटीज है, इतनी सारी फैसिलिटीज है, तो यू बिकम हैप्पियर, हेल्दियर, स्मार्टर, चीयरफुल, मतलब क्या क्या पॉजिटिव इमोशंस आएंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं होता। आपने जो 2 व्यक्तियों के नाम लिखे, यू हैव रिटन द नेम ऑफ 2 पर्सन्स, आपने जब लिखे तो आपके दिमाग में उन्हीं बंदों का नाम आया जिसके लिए आप कहीं ना कहीं थैंकफुल हैं। फिर आपने लिखा 2 कैरेक्टरिस्टिक जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, राइट। तो अब ये नेक्स्ट है कि फटाफट, मतलब एकदम जल्दी जल्दी बताएंगे कि आप वो जो आप कैरेक्टरिस्टिक प्लीज माइंड कि देखिए आप किस बात के लिए आपके जिंदगी में इन 2 बंदों ने किस तरह से पॉजिटिव वे में। और कोई भी अपने फैमिली मेंबर का नाम नहीं लिखेगा प्लीज। फैमिली मेंबर्स तो दे आर सपोर्ट सिस्टम। हम लोग जब साथ मिलकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, उसके तो टेबल 1 से नहीं शुरू करते, यहाँ से शुरू करते हैं। नॉट रिटन, यस मैम। आपने 2 बंदों का नाम लिखा था शुरू में, नेक्स्ट पीछे साइड पेज में 2 बंदों के नाम में आपको कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं आया, नेगेटिव चीज आप लोगों ने नहीं सोची। आपने सोचा कि भाई क्या सारा अच्छा ही चीज। तो वो जो अच्छे बंदे हैं आपके जिंदगी में, उनको आप थैंक यू करते हैं किस बात के लिए आप ग्रेटफुल हैं? क्वालिटी फॉर विच यू लाइक दैट। हाँ, हाउ दे हैव अफेक्ट। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ऐसा बंदा आपके दिमाग में आए, उसने कभी आपको अफेक्ट किया ही नहीं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। कुछ न कुछ करता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। आप है ना, जैसे हम लोग किचन में काम करते हैं या ड्राइविंग करते हैं, तो हम लोग को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, राइट? हम लोग को हाँ लैपटॉप पे, मतलब कॉन्शियस हम लोगों ने उस चीज को इतना मास्टर कर लिया है, उस चीज को सीखने में इतना अपने आप को महारत हासिल, उसके लिए अब हमें सोचने की भी जरूरत नहीं होती है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट, मतलब जो सबकॉन्शियस में है उसको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना है। आपको पता है आप कहीं ना कहीं हाँ उसका काम फैसिलिटी, हाँ उस अच्छा काम है, उससे बात कर लेंगे काम हो जाएगा, या फिर बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग जानते होंगे। तो इसको आप मान के जो चल रहे हैं उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करना है। ग्रैटिट्यूड हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, वो अपने आप नहीं आएगा। आप सोच लीजिए कि आपके दोस्त हैं, आप उसके लिए थैंकफुल भी कभी आपने कहा ही नहीं, आपने कभी कहा ही नहीं कि भैया हम आपके लिए आपके आभारी हैं, थैंक यू यार, थैंक यू दोस्तों। अरे दोस्तों में थैंक यू नहीं चाहते, लेकिन नहीं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यू हैव टू प्रैक्टिस इट। अंतर्यामी कोई नहीं है, कोई भी अंतर्यामी नहीं। यू हैव टू स्पीक आउट। कोई भी भगवान नहीं है कि आपका इमोशन पड़ेगा, लेकिन आपके अंदर में क्या है ना, चेहरा आपको, यू हैव टू स्पीक आउट। उसको बोलिए, उसको लिखिए, उसको किसी तरह से एहसास दिलाइए कि यस यू आर वंडरफुल पर्सन। और जब वो आप देंगे ना, तो वहां पर अगर रिसीविंग एंड टेकिंग वो दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कोई बंदा रिसीव ही कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। किसी के पास जो होता है वो उसको देता है। अगर आपके पास नेगेटिव इमोशन है तो आप नेगेटिव इमोशन ही दोगे। अगर आप में गुस्सा भरा हुआ है ना तो आप गुस्सा ही दोगे। अगर आप में प्यार भरा हुआ है, पॉजिटिविटी भरी हुई है, यू विल स्प्रेड पॉजिटिविटी। कल दीपक सर का इन्होंने इतना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इतना बढ़िया सेशन दिया। आप लोग को कहना चाहिए था दीपक सर इट वाज वंडरफुल। आपने बहुत सारे लोगों ने कहा यस अगेन हियर आई विल डिफर वन थिंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग ओके थैंक यू इट वाज वंडरफुल। क्यों कहना है, यहाँ पर आए हैं, चिट्ठी कर रहे हैं,
सब लोग को कंपेल किया गया है, वी आर सिटिंग हियर, तो मेहनत किया तो थैंक यू। एक्चुअली सभी, कुछ लोग बोले कुछ लोग नहीं बोले, जो बोले धन्यवाद, जो नहीं बोले उनको एक्स्ट्रा धन्यवाद कि नहीं, आई हैव टू डू बेटर, आई हैव टू डू बेटर कि नेक्स्ट टाइम में नहीं, मुझे धन्यवाद निकलवाना ही है, निकलवाना ही हाँ? यस। तो और अगर धन्यवाद है दैट इज इनकरेजिंग। आप अपने दोस्तों को जो 2 पॉइंट्स आपने लिखा है कि आप उन लोगों के थैंकफुल हैं, व्हाट वे यू आर थैंकफुल। आप लोग रेडी हैं? फटाफट एकदम बोलते चले जाने कि व्हाई यू आर थैंकफुल, और मेक इट अ पॉइंट। आज जा करके अगर कोलिग्स अगर यहाँ पर हैं तो दे विल बी हैप्पी। आई विश कि सारे लोग होते तो मजा ही आ जाता, सब लोग के चेहरे पर एक बड़ी बड़ी स्माइल आती, एक हैप्पी वाला क्या कौन सा हार्मोन निकलता है? नहीं हार्मोन कौन सा निकलता है बायोलॉजी मैन? डोपामाइन। हाँ, वो वाला हार्मोन निकलता है। हाँ, तो वो एक होता है ना हैप्पी वाला हार्मोन, वो वाला सीक्रेट, सारे लोग खुश होते हैं और सोचते हैं कि अच्छा ही रहा वर्कशॉप, इम्यून बूस्टअप होता है। हाँ, इम्यून बूस्टअप होता है, राइट, ये हेल्दी, फिजिकल, स्ट्रॉन्गर, बेटर स्लीप, कोई दुख दर्द से ज्यादा का परेशानी नहीं है। रात को अच्छी तरह से मैं सो ली हूँ मजे से, आज मैं पूरा फ्रेश हूँ पूरा। लेकिन जो सो नहीं पाए होंगे उन्हें तो बहुत फिजिकली दे आर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में है होंगे, जिनकी रात की नींद अच्छी से नहीं हुई होगी। बहुत जरूरी ये छोटे छोटे बात जो है ना, मतलब इसके ऊपर लोग बोलना चाहिए, हमारे बायोलॉजी वाली मैम बोलना चाहिए, या सारे लोग इनफैक्ट एज अ जनरल रंडू बोल सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ग्रेटिट्यूड। अपनी नींद के लिए धन्यवाद भगवान, आपने मुझे अच्छी नींद दी, वो भी बहुत ग्रांटेड लेते हैं। अपने बेड के लिए धन्यवाद मैडम, भगवान जी बड़े वाले भगवान जी, इतना अच्छा कोजी बेड दिया है, मैं सो लेती हूँ अच्छे से। आज मुझे पता चला जब मैं यहाँ पर आई, इसके लिए धन्यवाद कि मुझे वो भी पता चला कि मैं कैसे रह सकती हूँ। बहुत सारे लोग होटल में रुके, इट वॉज ओके, कोई ये नहीं है, लेकिन भगवान जी धन्यवाद कि मुझे ऐसे में भी रहने में मुझे आनंद आया। आई एम अ cheerful person, I spread happiness because I practice gratitude. मैं हर छोटे चीज के लिए धन्यवाद देती रहती हूँ। स्माइल करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए इस वक्त। यस, इमोशन इज देयर, समटाइम्स इट्स आउट ऑफ कंट्रोल, बट यस, कंट्रोल जैसे ही वो बाहर निकले, नहीं वी हैव टू रिफ्रेन। तो प्रैक्टिस अपने दोस्तों को बताइए कि आपने मुझे इस तरह से बहुत मदद की है। बताते भी, बहुत सारे लोग बताते भी है, थैंकफुल करते होते भी है, लेकिन अब आप जल्दी से फटाफट बताते हैं, बहुत सारा स्लाइड्स है, मुझे बहुत सारी बातें कहनी है, मेरे पास टाइम करना है। आप लोग प्लीज बोलिए। हाँ, He always provide valuable information. okay. We have a special bonding that every day when you will camp in a school, you have to inform me to information around the world. That अच्छा, means GK related. मतलब ऑफ कोर्स कितना है कि चलते चलते दोस्त बता क्या है, और दुनिया वो में पता क्या चल चल गया रहा कि है। अच्छा आज ये चल They रहा keep you है, अपडेटेड। हाँ, तो यू आर थैंकफुल, प्लीज आप इसके लिए थैंकफुल उनको भी बोलिएगा। चलिए मैम, आप तो हमेशा बोलती हैं, मैं आपकी थैंकफुल है कि यू आर एक्टिव पार्टिसिपेंट। एक और है सर का हाँ point, सर, एक हाँ, और ले लीजिए। हाँ, Provide always healthy environment. in the Healthy, staff yeah. room. ओके, हाँ। नाइस। नाम बताइए, बना के नाम रखिए। बताइए। They are Amar and Ashutosh. अमर एंड आशुतोष कौन से स्कूल के हैं आप? SP area Bihar से. बिहार शरीफ। पॉइंट ऑफ ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, अमर एंड अमर आशुतोष सर के एंड लिए आशुतोष सर। Actually मैम, जब वो लोग वहाँ खड़े हुए CRC में, तो वहाँ पे शायद बोन फायर हुआ था, अच्छा, चारों तरफ बैठे हुए थे लोग, म्यूजिक बज रही थी, तो अच्छा। उन्होंने वीडियो करके दिखाया कि we all are enjoying and you are missing. actually even I am missing my friend, few of my friends. चलिए, That's why I am very nice। thankful to हाँ, them. थैंकफुल आज उनको बताइएगा जरूर। हाँ, Yes. Okay, हाँ। सबसे पहले थैंकफुल सभी मास्टर चैनल को जिन्होंने हमें आज इतना अच्छा मौका दिया ये बोलने का, अपने ग्रेटिट्यूड को शेयर करने का।
ये सभी मास्टर ट्रेनर का सबसे पहला थैंक यू। उसके बाद हमारे कलीग्स जो हमारे स्कूल में है आपको 2 लोगों का नाम लेना था मैम। हाँ, मैं नाम भी बता दूंगी लास्ट ना, कलीग्स का नाम बता दूंगी स्कूल का, अच्छा। पहले मास्टर ट्रेनर का थैंक यू। और दूसरा जो स्कूल में हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमें कोऑपरेट करते हैं, साथ ही साथ किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी वर्क हो, वो अच्छी तरह से शेयर करते हैं और बताते हैं कैसे करना चाहिए ताकि कोई भी काम सक्सेसफुली हो सके। हाँ, एफिशिएंटली कम टाइम में कम बेहतर समय में और एरर अच्छा फ्री। कैसे करें। हाँ, एरर फ्री। नाम बताइए नाम मैम। बता दें, पहला संयुक्ता मैम और दूसरा सीमा शेखर। संयुक्ता मैम। सीमा शिखर मैम इज हियर ओनली। मैम यही सीमा है, शिखर वो मैम। अच्छा यही है, और संयुक्ता मैम भी आई है सेकेंडरी उनको जरूर बताइएगा। चलिए मैम, आज वो पूरा खुश है आज, है ना? कौन है? सीमा शेखर मैम यही है और संयुक्ता मैम सीनियर सेकेंडरी मैम। Always support me and give me valuable information, whatever if I want. ओके, व्हाटएवर। अब मेरे ख्याल से ये बहुत फैशन वैशन का भी काफी आपको इंस्पायर करती होगी कि नहीं? She always support in my science activities. साइंस एक्टिविटीज के लिए थैंक यू है आपको, इनकी तरफ से आप है ना। ओके, मैं दूसरे टेबल पर जाऊं इसके पहले मैं एक आपको दिखाना चाहूंगी। जब फिजिकल की बात आती है हाउ पीपल इंस्पायर, राइट? कि कुछ लोग सोचेंगे कि यस, हेलन केलर का सपोर्ट सिस्टम, डिटर्मिनेशन, ग्रेट, द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ऑफ द पेरेंट्स हु वांटेड हर टू बी इंडिपेंडेंट। पेरेंट्स लोग का सबसे बड़ा होता है कि बच्चे अच्छे से बन जाए। लेकिन जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब डिटर्मिनेशन ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन है ना, हमेशा जब अगर आप अच्छे, या हेलन केलर है उस जगह पर पहुंची कि आज वो मोटिवेशन एग्जाम्पल है, मोटिवेशनल एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग, लेकिन ऐसा वो कर पाई बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। आप अगर अच्छे हैं, आप अगर यहाँ पर हैं, खिलखिला रहे, मुस्कुरा रहे, खूबसूरत लग रहे हैं, उसका जिम्मेवार सिर्फ आप नहीं हैं। कहते हैं ना, आप अपने जिम्मेवारी खुद ले, आप अपने हर कर्म के जिम्मेवार हो, बोलते हैं ना। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, आप सिर्फ उसके हकदार नहीं हैं। There are so many external force that makes you happy. आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, आप अकेले, आपने कुछ अकेले बाहर नहीं फोड़ा है,
आपने अकेले कुछ नहीं किया है, आपको बहुत सारे लोगों की मदद की जरूरत पड़ी है और आपको पता भी नहीं है कि इतनी मदद के बाद आप इतना दूर आए हैं और आपने उस मदद को सोचा भी नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर कोलीग्स, आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे ना, आप बहुत खुश बंदे होगे, बहुत हैप्पी पर्सन होगे जब आप फील करोगे कि आई एम हियर नॉट बिकॉज ऑफ मी ओनली, बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स। I am here today because of you people. I am here today because of my organization. I am here today because of training. I am here because I went to Delhi. तो gratitude practice कर, मतलब आप कुछ भी हो सकता है, right? Gratitude अगर हम practice करें कि जो होता है कुछ शायद अच्छा ही होगा, तो पॉजिटिविटी लाने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो इट इज अबाउट सेइंग कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होगा, और जो हुआ है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना। तो कुछ जरूरी नहीं है कि कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा या कुछ नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना ग्रैटिट्यूड, तो वो आपके अंदर आना शुरू होगा कि नहीं, इसके पीछे कुछ अच्छा ही है। और जब वो आप अच्छा सोचेंगे ना, चीजें अच्छी होती जाएंगी। मैनिफेस्टेशन। यस, मर्फी लॉ कहता है ना, व्हेन यू फियर समथिंग, क्या होता है मर्फी लॉ से? When you fear something, you will become like that only. हाँ, when you fear something, it is bound to happen. जो चीज के लिए डर होगा ना, वही होगा। ट्रेनिंग होना है, आज होगा, कल होगा, कल होगा, परसों होगा। डर रहे थे, हो गया, खत्म भी हो जाएगा आज। तो मतलब मर्फी लॉ ये कहता है कि जिस चीज को आप डरोगे, सबसे ज्यादा जिस चीज से डरोगे वही होगा, वही आपको डराएगा, वही डराएगा, और वो नहीं हो भी जाएगा। पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। वर्कशॉप में हम जब आते हैं तो ये अगर सोच के आए कि ये नेगेटिव भी, केवल दिमाग में अगर सिर्फ नेगेटिव ही सोच के आए कि ऐसा पिछली बार हुआ था वैसा ही होगा, ऑटोमेटिकली वही होने लगेगा। हाँ, क्योंकि माइंड वैसे ही क्रिएट करने शुरू हो जाता है परिस्थितियों को। बिल्कुल। तो क्यों नहीं ऑप्टिमिस्टिक हो करके ही सोचे हैं, एग्जैक्टली पॉजिटिव वे में ही सोचे। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट। बिल्कुल मैडम, साइकोलॉजिकल। अब जहाँ पॉजिटिव इमोशन आएगा कि नहीं, पहले जैसा तो नहीं होने वाला है, इस बार तो बढ़िया होने वाला है, क्या वंडरफुल अरेंजमेंट हुआ, पिछली बार थोड़ा सा हुआ था लेकिन इस बार सीधा अरेंजमेंट, इट इज वंडरफुल, रिच मैन। ऐसे भी कहा जाता है हाँ, कि जो आप सोचते हैं ना, तो वास्तु कहता है तथास्तु। आप जो अगर अच्छा सोचते हैं तो वास्तु भी कहता है तथास्तु और अच्छा होता है, और अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे ना तो वास्तु भी कहेगा तथास्तु। वही चीजें होंगी बस आपको वो तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे ग्रैटिट्यूड। हमारे साइंस बुक के लिए, हाँ यस मैम, ये बात हमेशा कही जाती थी कि जिस सब्जेक्ट से हम लोग ज्यादा डरते थे वही डुबाता है, घूम फिर के फेस करना पड़ेगा। तो वही है कि और उसके बाद जब आप अलर्ट होते हैं, प्रैक्टिस करते ग्रैटिट्यूड, आप है ना और अलर्ट, अलाइव क्या हुआ कि आपने जिसको थैंक यू किया, आप रिक्शा वाले ने आपको इतना दूर खींच करके लाया, पैसे दे करके एक थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। 4 बार लड़े, तुमने मेरे से ज्यादा पैसे ले लिए, 2 घुमा के होते हैं वैसे बंदे, राइट? 2 रुपए के लिए, 2 रुपए के, वो दैट इज ओके, मैं उन्हें बताने नहीं जा रही। लेकिन अगर हम लोग आपस में ही प्रैक्टिस, इतने ही लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे, अवेक होकर, मैं अगेन कहती हूँ, अनकॉन्शियस में है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट कॉन्शियसली। मैं एक छोटी सी कहानी बता रही हूँ। एक लड़का था, बहुत वेरी रिच बॉय, मतलब अमीर माँ बाप का बच्चा था, तो ऑब्वियसली बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। तो क्योंकि पिता उसके गरीबी से गए थे, तो उनको तो हार्डशिप पता था, बच्चे को हार्डशिप पता ही नहीं है कि कैसा लाइफ होता है, हार्डशिप वाला लाइफ। तो वंस ही डिसाइडेड टू टेक हिम टू अ विलेज टू शो हाउ द लाइफ इज इन हार्डशिप। ले गए, देखिए कैसे मच्छरदानी में नहीं है, मतलब एमिनिटीज नहीं है, पानी की फैसिलिटी नहीं है, मतलब जो उन्हें वो दिखाना था, उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो बच्चे को ले गए, गांव घुमा करके वापस घर लाए, और उसके बाद उन्होंने पूछा बच्चे से, व्हाट डिड यू सी?
आपको विश्वास होगा बच्चे ने क्या ऑब्जर्व किया, बच्चे ने क्या कहा, इंस्टेड ऑफ इनक्लोज्ड हाउस दे हैव द ओपन स्काई, इंस्टेड ऑफ रनिंग टैप वाटर दे हैव सी एंड पूल. It is what you want to see and show. क्या आप देखना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं. Whatever you तो think, you just see only that. हाँ, That only. प्रस्पेक्ट वो दिखाना चाहते थे कुछ और, लेकिन वो देख करके आया कुछ और. परसेप्शन. हाँ, ही वॉज मतलब पिता परसेप्शन वही ना कि पिता चाह रहा था कि वो देखे हार्डशिप, लेकिन वो तो दूसरी दुनिया देख करके आ गया. वो उसको मतलब कुछ अजीब जो होना था वो समथिंग डिफरेंट हो गया कि भाई खुले आसमान के नीचे सोना, ठंड ऐसे जो नेचुरल हवा आती है वो उसको दिखा. नेगेटिव में भी उसने पॉजिटिव ढूंढ लिया. नेगेटिव उसने नेगेटिव नहीं देखा. एग्जैक्टली उसने ये नहीं देखा कि अरे पानी तो नहीं, जैसे ही गया तो पानी नहीं आ रहा, गीजर में गर्म पानी नहीं आ रहा, ऐसा उसने नहीं देखा. उसने सारे में पॉजिटिव देखा. That is the meaning of practicing gratitude. वहाँ पर कुछ और दिखाने गए थे, कुछ और देख के आया, कुछ और निकल के आया. This is what alert, awake and alive. कि आप कैसे किसी चीज को देखते हैं, कैसे आप लेते हैं, तो वो कब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे gratitude. That is consciously. ये हम लोग लॉकडाउन में सीखे हैं. लॉकडाउन में क्या सीखे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमें मोटिवेट भी किए और ग्रेटिट्यूड पर बहुत अच्छा से उदाहरण दिए. क्या उदाहरण दिए? तो हमारे ही देश में 2 ऐसे कंपनियों को चुने जो कोविड के लिए वैक्सीन बनाएगा और इसकी जानकारी पूरी तरह से सब लोगों को टीवी के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से या मैगजीन में जो भी हर आदमी को बताया कि आज हम यहाँ पहुंचे, हम आज लैब में हैं और हमारा वैक्सीन तैयार हो गया और बूस्टर डोज तैयार हो गया. तो हम लोग आशान्वित हो गए कि अब हम लोग लगता है कि ये जो समस्या है इससे हम लोग बच जाएंगे. हाँ, तो वो ग्रेटिट्यूड ये ग्रेटिट्यूड है कि साइंस मैंने जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्चर हैं, उसके साथ मिल करके और हमारे माइंड को भी फ्रेश किए और काम भी बहुत तेजी से किए और अब भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों को मदद भी किए और ये सब ग्रेटिट्यूड से ही हुआ. हाँ, प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड. हमने थाली पीटी, ताली बजाई, वो ग्रेटिट्यूड हम लोगों ने शो किया था. ग्रेटिट्यूड अभी चंद्रयान लॉन्च हुआ तो उन्होंने आभार व्यक्त किया सारी दुनिया के सामने कि वो साइंटिस्ट को लोग आगे बढ़ाए और मतलब ये बड़ी बात है. प्राइम मिनिस्टर जाकर के हारने पे ड्रेसिंग रूम में अप्रिशिएट किया. चंद्रयान भी फेल हुआ था. प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड. वो हमेशा साथ रहते हैं. वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कॉन्शियसली अगेन आई स्पीक द सेम थिंग, कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना होगा ग्रेटिट्यूड. अब लेट्स कम बहुत सारे ये वाला अगर मान लीजिए सोशल स्किल, ये ग्रेटिट्यूड क्या होगा ना आप में सोशल रिलेशन डेवलप करने में बहुत मदद करेगा. हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग यहाँ पर आए, बहुत लोगों से मैं पहली बार मिल रही हूँ, बहुत लोग मुझे भी शायद पहली बार ही देख रहे होंगे, मिल रहे होंगे. तो अब क्या है ना कि हमारा कहीं ना कहीं बॉन्डिंग डेवलप हो रहा है, आई कॉन्टेक्ट है, पॉजिटिव वाइब्स जो जा रहा है और जो पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है वी आर ऑल रिसीविंग एंड टेकिंग. तो वो सोशल फैब्रिक है ना, दैट बिकम स्ट्रॉन्गर. सोशल फैब्रिक कि यू बिकम मोर जेनरस. हेल्प करना है, जिस चीज से हेल्प हो. टूथपेस्ट अच्छा आज नहीं लाए, दे दो. मतलब छोटी छोटी हेल्पफुल, छोटी छोटी बातें, दे आर देयर टू मेक योर सोशल रिलेशन स्ट्रॉन्गर. आप ज्यादा पता है टू टेक रिवेंज इज इजी है ना, बदला लेना बहुत आसान है. व्हाट इज डिफिकल्ट इज ना टू फॉरगिव. Very difficult. Very difficult to forgive. Forgive अगर आप हम लोग सीख जाते हैं, प्रैक्टिस का एक ग्रेटिट्यूड का एक एलिमेंट है. इफ यू स्टार्ट फॉरगिविंग पीपल यू विल बी एट पीस. डिवाइन छोड़ो नहीं छोड़ दो. ये प्रॉब्लम होती है मैम और जिसमें बाकी को नहीं होती. कम ज्यादा ईगो कम ज्यादा है ना, वो बहुत मुश्किल है. ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना आसान नहीं है मैम, क्योंकि है ना हम लोग अच्छा आज इसके लिए कर लिया लेकिन उस चीज के लिए तो रह गया, वो वाला चीज तो रह गया. लिस्ट क्योंकि बहुत लंबा है. वो यदि जिसमें बदले लेने की भावना है वो अपने आप को ही हार्म करता है. एग्जैक्टली जो वही ना बोल रही हूँ, और ये जिसके बारे में सोचेगा. हाँ
अपने ऊपर पॉजिटिव चीज के ऊपर फोकस करने के बजाय दे कीप ऑन थिंकिंग कि अच्छा आने दो, मौका बताते हैं, पूरा स्ट्रेस बढ़ेगा, मौका ढूंढते रहेंगे कि इसके चक्कर में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर मौके बगल से निकल जाएंगे। खो देंगे, हाँ। मैं बताती हूँ, बच्चे जैसे सीढ़ी से उतर रहे हैं, किसी ने किसी को पुश कर दिया, वो गिर गया, अब वो दोनों झगड़ रहे हैं, मेरे पास आए, मैंने कहा अच्छा ऐसा हुआ, ओ तो जिसने पुश किया था पहले मैं उसको बोलती तुम इसको सॉरी बोलो, फिर झगड़ा उससे वो किया तो बोली तुम भी इसको सॉरी बोलो, अब इसको यही खत्म करो, नहीं तो वो आगे कैरी ऑन होता जाएगा, फिर ये फाइट बाहर होगी। हाँ, तो हम लोग है ना, ये तो हम लोग इतना सारा, हम लोग बड़े बड़े बात है, बड़े थोड़े से मेच्योर लोग हैं, तो हम लोग को बहुत सारी बातें समझ में आई है, बच्चों को नहीं समझ में आती है, उनको नहीं समझ में आती है। तो अगर हमें अभी नहीं समझ में आ रही है, आई एम टेलिंग यू, हम लोग को नहीं समझ में आ रही, व्हाट्सएप की दुनिया बहुत बड़ी है और हर दिन है ना पॉजिटिव मैसेजेस का भरमार आते रहता। अच्छा स्क्रॉल, हाँ बहुत अच्छी बात है, हाँ इसको करेंगे कल से, एंड टुमारो नेवर कम्स, तो मैसेज का डेल्यूज है, बाढ़ आया हुआ है, कितने मैसेजेस भरे हुए हैं, कितने मैसेज पढ़ेंगे, तो फिर प्रैक्टिस कब करेंगे? प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए, मैसेज ही पढ़ते रह जाएंगे, तो प्रैक्टिस कब करेंगे? प्रैक्टिस प्लीज मैम। मैं क्लास में लंच के बाद वाला पीरियड में माने मुझे जाना था जिस क्लास में, उस सेक्शन में मैं पहुंची, तब तक दो बच्चे आपस में लड़ लिए, तो सारे बच्चे बोलने लगे मैम इन लोगों के बीच में खूब फाइटिंग हुआ, क्या बात है, क्यों हुआ? तो एक्चुअली वो कोई नोटबुक पास कर रहा था माने, और किसी गलती से सिर में लग गया उसका, तो जिसके सिर में लगा वो, और जो नोटबुक पास कर रहा था वो, दोनों में झगड़ा हो गया, और जो नोटबुक दे रहा था उसको साथ ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो वो बोला कि दूध पिया है तो आओ। तो मुझे हंसी आ गई कि माने इस तरह से, फिर मैंने पूरी क्लास से पूछा कि आज कौन कौन दूध पी के आए हो, तो लड़की लोग भी हाथ उठा दिए, लड़के लोग भी आ रहे। उसमें मैं बोली कि देखो इतने लोग दूध पी के आए, तुमको किससे लड़ना है? तो वो बेचारा थोड़ा शर्मा गया, और उसके बाद उसको मतलब उसके अंदर में थोड़ा सा माने उसके आँख में आंसू आ गए, फिर मैं उसको शांत कर दी, और जो उससे झगड़ा किया था फिर उसको मैं बुला के बोली तुम इसको सॉरी बोलो, फिर दोनों फिर शांत हो गए। दिस इज वन ऑफ द वे। और वैसे भी आपकी स्माइल देख के सब शांत बहुत, कहते हैं ना आपकी स्माइल ही पूरा पॉजिटिव वाइब फैला देता है। हाँ, सही बात है, हाँ अच्छा है कि वो थोड़ा सा सही बात है, पॉजिटिविटी तो फैलाना पड़ेगा, ये हम दैट्स वाई हम लोग है ना इस जगह पर, अगर हम लोग ग्रेटिट्यूड दें तो हम लोग अपने प्रोफेशन को दें ग्रेटिट्यूड, कि हम लोग ऐसे पायस नोबल प्रोफेशन में है कि हम लोग को इतना सारा मौका मिलता है टू अफेक्ट द लाइफ इन अ पॉजिटिव वे, टू मतलब अराउंड। अगर हम एक बच्चे को इम्पैक्ट करते हैं वो कितने लोगों को इम्पैक्ट करेगा, फिर बोलता तो चेन रिएक्शन चलेगा। अभी बहुत सारे लोगों का बाकी है, मेरे पास एक एक्टिविटी है जो साइंस बुक से है। टाइम कितना है? टाइम हो गया है, बहुत टाइम है, हाँ अभी एनफ टाइम है, 10:30 बजे तक, 11 से नहीं 9:30 से 9:30 से, अच्छा वी आर हैविंग सम टाइम। हाँ सब लोग खुश हो रहे हैं, अच्छा टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन अभी है टाइम। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। हाँ प्लीज मैम। हाँ मैडम ने बात किया कि 2 लोगों के बारे में बताइए जो कि आप यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हुआ है, कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ प्लीज आपके पास आएंगे सर, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। नाम अभी तो मैं नहीं बताऊंगी, पहले उनके बारे में बता दूं जिनके लिए थैंक यू। सबसे बड़ी चीज़ है कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। एक टीचर साइंस एज ए साइंस टीचर, चाहे फिर ऐसे भी आम इंसान में, सबसे पहले बहुत कंपल्सन है कि हम कॉन्फिडेंट हों अपनी बातों पे, चाहे वो हम गलत कह रहे हो चाहे वो हम सही कह रहे हैं। अरे वाह, वो बात की बात है, वो तय होगा सामने वाले बंदे पे कि वो गलत है, कि जस्टिफिकेशन तो उसको करना है ना कि वो गलत हो चाहे सही। इन्फॉर्म्ड रहेगा तो बताएगा। हाँ कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, और अपनी बातों को बहुत इफेक्टिव वे में रखना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें 2 लोगों का मैंने नाम लिखा था, एक राजीव सर थे, राजीव सर थे। अरे राजीव सर, आपका स्माइल बहुत अच्छा है। रितु मैडम आपकी बारे में। अरे एटीट्यूड आउटस्टैंडिंग, और इसी के साथ मैं अपने लाइफ में
उसको तो आपने जोड़ने नहीं बोला था, लेकिन फिर भी मैं एज ए साइंस टीचर, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होती है, तो साइंस के प्रति क्यूरियोसिटी जगाने में मेरे फादर, उनको आज मुझे कभी मौका नहीं मिला अपने फादर को बोलने का है, लेकिन उस तरह से कभी हुआ नहीं ऐसा। हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं मैम, ये हमारी कमी है। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने हर छोटी छोटी चीजों में साइंस को दिखाया। वी आर ऑल इंडियंस, भारत है, भारत का कल्चर, भारत का लाइफ स्टाइल इज, मतलब एवरीथिंग इज साइंस। हमारा जो कस्टम है, कल्चर है, जीवन शैली है, और एक छोटी से घर में औरतें जिस तरह, हमारा पार्ट ऑफ योगा था, पार्ट ऑफ लाइफ था, पार्ट ऑफ लाइफ था, हम एक्सरसाइज करते थे, तो उसमें वो साइंस दिखाना, वो हमारे पेरेंट्स ने पॉजिटिविटी के जैसे साथ कान चीजों को में मुझे कंप्लीट होल करना। कराना था, मुझे याद है होल कराना था, क्यों कान छिदवाना है, कान छिदवाना है, तो बोले तुम कभी सर्च करके देखो, कभी उसमें छोटे ही थे लेकिन उस चीज को कभी देखो। बाद में उन्होंने बताया कि चिकित्सा की, ऐसे भी मैंने बाद में रिसर्च ज्यादा किया, उन्होंने तो छोटा ही बताया, चिकित्सा की 3 पद्धतियां जनरली होती हैं, ऐसे तो 4-5 है, होम्योपैथ, एलोपैथ, सब उसमें है एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर। हाँ मैम, नस को दबा के नस को छेद कर। तो अब मुझे धीरे धीरे पता चला ना कि Gratitude for parents, हाँ। ये साइंस है। हाँ, हम कहते हैं कि हम टिपिकल टाइप वुमेन हो जाते हैं, बिंदी लगा देते हैं, सिंदूर लगा लेते हैं, तो हम टिपिकल टाइप वुमेन हो जाते हैं। हाँ मैम, ऐसा है ना, तो जब ये हम लोग science है। पेरेंट्स की बात किया, इसीलिए मैं है ना, मैंने है ना फैमिली को ओमिट करके रखा था, मैंने इसीलिए फैमिली को, क्योंकि काउंटलेस है द वे वी आर ब्रॉट अप, इट हैज एन इमेंस इम्पैक्ट। तो पेरेंट्स की अगर हम लोग ग्रेटिट्यूड की बात करें ना, किताबें बढ़ जाएंगी मैम, वो खत्म नहीं होगी। वो तो है ही मैम, लेकिन ये साइंस से कनेक्ट होता है, साइंस से कनेक्ट होगा। दैट इज व्हाट, कि पहले जो होता था वो ऐसे ही नहीं होता था, जो बड़े बूढ़े कहते। तो इसीलिए मैं कह रही थी ना कि यहाँ पर जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ घर में तो हम लोग ग्रांटेड लेते हैं, या फिर कभी कभी अच्छा प्यार से गले लगा लिया, कुछ कर दिया, वो अलग, ये फॉर्मल एनवायरनमेंट है। इस फॉर्मेलिटी में समटाइम्स वी फॉरगेट, वी डू नॉट हग ईच अदर, हम लोग मतलब ऐसा नहीं करते हैं। तो क्या कर सकते हैं एट द वर्क प्लेस, लॉजिकल, बच्चों से हम लोग कनेक्ट करके एग्जैक्टली, बताते हैं। हाँ, जैसे बच्चों को भी ये बताना, जैसे घंटी, सिंपल सी चीजें, घंटी की ध्वनि बज रही है, वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाइब्स देता है। बच्चों को इसके साथ साथ वो भी साइंटिफिक चीजें बताना, हमारा ही एज ए साइंस टीचर, एज ए साइंस टीचर, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी आर हियर। मतलब मेरा जो टॉपिक है वो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, और शुरू में ही मैंने कह दिया कि प्लीज फॉरगेट अबाउट योर फैमिली राइट नाउ, क्योंकि फैमिली का तो मतलब चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे मतलब मामा मामी, दादा दादी, मतलब देयर आर सो मेनी पीपल टू हुम वी आर ग्रेटफुल एंड वी हैव नॉट टोल्ड देम। हमने कहा अगर हम, पता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है आपस कोलिग वाले, तुम्हारे क्वालिटी क्या बात है, तुमने मेरी इतनी मदद कर दी, हम लोग ग्रांटेड लेते हैं, हम लोग सोचते हैं अच्छा वो तो है ही ना, मुझे ये प्रॉब्लम हो वो तो है ही ना, अच्छा ये जानकारी चाहिए वो तो है ही ना। अरे भाई फैमिली, हाँ फैमिली, इसलिए मैं कहा फैमिली के लिए तो मतलब वो सारी पुस्तकें छोटी पड़ जाएंगी, क्योंकि हम लोग इंडियन कल्चर में वी आर स्ट्रांगली मतलब अटैच टू आवर फैमिली, कि उन्हीं की खुशी और दुख से हमें बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन एट वर्क प्लेस हम लोग थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहते हैं, तो वी हैव टू डेवलप, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग अपना कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, अपना उसी को कनेक्ट करने के लिए वर्कशॉप रखा स्ट्रॉन्ग कर लें, तो समझिए अगर हम लोग वर्क प्लेस पर इतने पॉजिटिव हो जाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा बच्चों पर। एक हैप्पी क्लासरूम, बहुत सारे वर्कशॉप में चलता है हैप्पी क्लासरूम। व्हाट इज हैप्पी क्लासरूम विदाउट हैप्पी टीचर्स? No, it cannot be possible. It cannot be possible. If you are not going with a cheerful, oh, good morning children, how are you? तो मतलब बच्चे लोग है ना, Double energy से नहीं। मतलब what you give, you receive. हैप्पी स्टाफ रूम रहेगा तो हैप्पी क्लासरूम। Exactly sir, exactly. और क्लास सब बहुत सारा महाभारत तो स्टाफ रूम में ही हो जाता है। हाँ, सारा वायरस तो वही पड़ा। सर हम let the charity begins from home. हाँ, yes. If you want to see the change, be the change. Right? राजीव सर भी हल्का फुल्का माहौल कर ही देते हैं, हम लोग स्टाफ रूम का चिल माहौल है। चिल माहौल, तो what? Thank you, gratitude for him. कि ये कम से कम उस, अगर वो जो नेगेटिव वाला वायरस है ना उसको थोड़ा क्लीन करने में आप अकेले कर रहे हैं, मान लीजिए आपके क्लीन करने से वो भी इम्पैक्ट हो रही है, वो भी शुरू कर दे रही है, उनसे इम्पैक्ट हो, Staff room will be virus free. लेकिन मैम हम लोगों का तो स्टाफ रूम ही नहीं है, हम लोग तो बरामदा पर ऐसे ही लगा हुआ है, वैसे बैठते हैं।
about that. And नहीं, when we don't are talk talking about that. I am grateful for that. I am grateful. हाँ। Now again. वहाँ धूप भी लगती है, वहाँ हवा भी लगती है, वहाँ Exactly. पंखा भी नहीं I है। am grateful. अब बरंडा हम लोग बैठते हैं जी, मस्त से बैठते हैं। Okay. वहाँ एम्प्टी बैठा नहीं है। करेगा, exactly sir. Exactly. है नहीं, और इसके अलावा 20 बरस से हमारे वहाँ नहीं है इसका मतलब। उसके अलावा क्या है ना, खुला हुआ है। You are able to see the picture. पहले से लगा रहा है, मैम बैठी हुई है। सीनियर को स्टाफ रूम है। खुला है। हम लोग खुले कॉरिडोर में बैठे। What's wrong in that? हाँ, हम लोग ठंडे में बैठे हुए, अच्छा स्ट्रॉन्ग जितना मेरे, अब मैं अपने फैमिली पर नहीं आती हूँ, लेकिन आई एम फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड, तो मेरे पेरेंट्स से उनका नहीं मतलब कि आप अपने आप को जैसा बनाओगे वैसा बनेगा। बस बस। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, ग्रेटिट्यूड होगा, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करो, ठंडे में बैठना शुरू कर दो। कहाँ वो अंडा वाला जो बेचता है उसको ठंड लगता है, वो तो बैठा रहता है रात को 11 बजे तक। हाँ, मतलब इट इज ऑल अबाउट, हम लोग भी ठंडा में गाड़ी चला के 5 बजे स्कूल आते हैं, हमको भी ठंडा में लगता है। हाँ सर, तो ये है ना कि उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कीजिए कि आप उतना स्ट्रॉन्ग हो पा रहे हैं, राइट। देखा देखी होता है। सर का एक खासियत है ना कि he keeps the all lighter, लेकिन at the same time sometimes it becomes over. तो सुमन सर साहब requesting you कि हम लोग है ना क्लास में चाहे स्कूल में चल करके हम लोग माहौल को और सही करने की कोशिश है, करें। अच्छी बात है, बढ़िया है, लेकिन हमेशा 6 क्लास को भगा के नया बिल्डिंग ले जाती है और हम लोग को उसी गर्मी के थपोड़े में छोड़ देती है। पूछिए है नहीं सही है कि गलत है, सामने में है, हर बरस वो उसी, हाँ जाइए नहीं सर, और हम लोग इसी बिल्डिंग में, उसी रूम में, उसी गर्मी में। I am thankful for राकेश सर। आज नेगेटिव एनर्जी ज्यादा लेके आए, इसलिए आज नेगेटिव ज्यादा बोल रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ज्यादा बोल रहे हैं। ये पॉजिटिव है। नहीं ये पॉजिटिव है, क्योंकि अभी है ना बात कहना जो है ना बहुत बड़ी बात है। सभी लोग नहीं कह पाते। नहीं सही बात है, इनका है ना, लोग जो है पीछे में बोलते हैं, हम सामने जो है सामने है। इनके साथ है ना कि इनको मिल नहीं पाता है, तो मतलब जब भी इनको मिलता है तो ही वेंट्स आउट, तो आई एम ओके विद दैट कि सर 1 साल नहीं मिला, 20 बरस से नहीं मिला, नया बिल्डिंग में 1 साल नहीं पढ़ा है। एक्सक्यूज मी सर, अब देखो हो सकता है रिटायर कर जाए 2041 में, तो तब तक नहीं मिले। एक्सक्यूज मी सर, नहीं वेट, दैट इज नॉट दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं सर। एक मिनट मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो हम लोग घर की अगर बातें लाएं तो दैट इज नॉट गुड, राइट। उसमें हम लोग पॉजिटिव हैं, ये बात है। It's perfectly not all right to wash your dirty linen in the public. हाँ चलिए, Right? It's not. Let's practice gratitude. Yes, ma'am. Yes, and first of all, I am giving gratitude to the God who has given us the wonderful system to study all the things. Yes, exactly. That second gratitude to Andy Grover sir. Yes. who has बिल्कुल given बिल्कुल. us wonderful platform. And then comes the colleague who support and who help us, me, and they are the Nishi and the Ritu. Oh, thank you, ma'am. Both are wonderful science teacher. Even when I need, I always turn to them. हमारे क्विज कराना हो, चाहे साइंस का कोई भी एक्टिविटी करा, they are ever ready. और वो तो इतना शांति से करती, किसी को पता भी नहीं चलता। मेरे क्लास में हाँ, निशी मैम वो है वो, और संगीता दास मैडम वेरी, मतलब एक्चुअली साइंस टीचर में जो सारा ग्रेट, ऑल द टाइम शी इज इन साइंस एंड लुकिंग फॉर द अपडेट्स एंड शी इज हैविंग। कल हम लोग बोध गए, वहां पर भी इन्होंने काफी कीन ऑब्जर्वर, तो यस आई एम ग्रेटिट्यूड टू सुमन सर, निशी मैम एंड ऑल अशोक सर और एंड ऑल माय डियर कोलिग्स। मुझे है ना वॉट एवर, मतलब आप लोग कुछ अग्री कर रहे होंगे, कुछ मन में कुछ और सोच रहे होंगे, लेकिन आई एम गेटिंग ऑल द पॉजिटिव वाइब्स, आई एम रिसीविंग इट ऑल द पॉजिटिव वाइब्स। तो अब एक एक्टिविटी छोटा सा है, एज ए स्लाइड्स तो काफी सारे हैं, लेकिन आई एम होल्डिंग इट हियर फॉर अ व्हाइल। हमारा साइंस में, साइंस की बुक सभी के पास है, साइंस के सब्जेक्ट भी है। आप लोगों को बस एक छोटा सा 3 मिनट का, 3 मिनट काफी रहेगा, कितना कम रहेगा, 5 मिनट का एक्टिविटी। देखिए आपको है ना 7 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है। 7 मिनट्स में एक ग्रुप, एक चैप्टर, कोई सा भी एक चैप्टर आप लोग लेंगे, एनी चैप्टर, साइंस चैप्टर, उसमें से आप एक इनैक्टमेंट डिजाइन करेंगे और यहाँ पर इनैक्ट करेंगे। Which is related to value? ग्रेटिट्यूड। अच्छा, related to ग्रेटिट्यूड। आपको साइंस में एक चैप्टर सिलेक्ट करना है, उसमें से
आपको जिस निकालना कि आप उस चैप्टर में ग्रेटिट्यूड बच्चों को कैसे बताएंगे। कौन सा वैल्यू प्रैक्टिस वही value based वैल्यू आप बहुत सारे उसमें बहुत सारे चीज निकल जाएगा। तो आपको दिया जाएगा टाइम देख लीजिएगा आप फोटो दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस में जो टोटल मिला करके 5 मिनट मिल रहा है, 2-2 मिनट का यहाँ पर डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। हाँ यही है। नाइस दैट्स ऑफ टू सक्सेस इसका एक फोटो बनाइए कैसे हम सेव कर सकते हैं। जैसे स्टॉप फैन तो दिखा दीजिए स्टॉप फैन एंड लाइट। इसको दिखाना है ना मैम को बुलाइए एक बार देखिए जैसे मैम इधर जैसे सेव इलेक्ट्रिसिटी में स्टॉप फैन और लाइट को दिखा दे आप लोग आपस में डिस्कस करके हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना। हाँ बिल्कुल चलिए सो मेनी थिंग्स यू कैन सारे चैप्टर्स में है तो वही तो हमें प्रैक्टिस चलिए बनाइए इसको बना ये अच्छा भी है कोई बनाएगा रेडी चलिए टाइम अप थैंक यू 5-6 पॉइंट प्लीज बस हो गया। टेबल नंबर 2 is ready with the act. Table number 1. I am part of table number 1. What table number 1? यस टेबल 1 रेडी है आप सारे लोग। देखिए इनका क्या नजरिया है to practice gratitude in the class, to make children practice gratitude in the class, and that too मतलब in a scientific way, right? Science उसमें involved हो रहा है। Ma'am, I want to first, good morning to all of you. I want to first थोड़ी हिस्ट्री को सीधा लिखा जाएगा attention toward Everyone please attention. our great Prime Minister, Mr. हम Narendra. जैसे ही तंगी है उठते तंगी हैं लाई Some years ago, हम अपना दिन शुरू करते हैं एक इलेक्ट्रिसिटी चीज से एक लाइट चाहिए एक फैन चाहिए गर्म चाहिए उसको उसको हम कैसे लिखिए आप some years ago, when he was taking food in restaurant, and then waiter at last came to serve some informative statement I want to for our hotel. So he has written simply Annadata Sukhi Bhava. And on the basis of that, I have prepared preparations of substances from class 6, chapter 4. To win a farmer using winnowing method, he simply used to fall down from a height. fall down the grains settle down, and all the husk scattered, blood scattered due to the temperature. So in this way, we all are very thankful to our farmers who have provided me the healthy food and make us healthy and Thank you farmers. अटेंडेंस सीट किनके पास है सर? वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्कर्स हमारे घर में कचरा लेके आगे ले जाते हैं तो हम उनको भी थैंक दे सकते हैं कि उन्होंने हमें सिखाया क्लास को। कभी बच्चों को बच्चे क्लास में डस्टबिन या कागज पेन पेंसिल रैपर पेंसिल छिलके या टॉफी कुछ भी फैला देते हैं तो हम उनको सिखा सकते हैं कि हम इसको सेपरेट करें और थैंक करें। आप अपने रोज देखते होंगे कि घर में रोज सुबह कचरा वाला आता है, हम उसे कचरा वाला बोलते हैं, लेकिन वो आपके घर के सारे कचरों को लेके जाता है। इसी तरह आप अगर उस क्लास को भी अगर साफ रखें तो आपका क्लास भी साफ रहेगा और हमें रोज उस कचरे वाले को भी थैंक्स करना चाहिए
कि उसने हमारे घर की सफाई की। इसी तरह क्लास में भी अगर आप में से कोई भी बच्चा उसको उठा के डस्टबिन में जाता है तो हर रोज उसको थैंक करो, क्योंकि उसने आपके क्लास को साफ रखने में ग्रेटिट्यूड दीजिए उसने। Very nice, wonderful interaction. To the scientists who discover energy, light is energy. That is a form of energy. Light is a form of energy. Current क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का कोई और भी वर्ड? We have to explain. We are thankful to the Ma'am has a scientists. point. It was enacted. It should have been enacted in the वो कहना चाहते हैं कि समझ में आना चाहिए था कि हाँ ये बोला gratitude enact enactment. आपने जो कहा बिल्कुल सही है. That is wonderful way of teaching children to practice gratitude. ठीक है. Okay. करवा रहे हैं. थैंकफुल देंगे एडिशन कुछ दिन लाइट दिया और लाइट से लोग पढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिक से सोने में जो बदल देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या करते हैं हाँ बस आप बोलिए ना अपने लोग का टॉपिक और क्या लिखे आप लोग? हो गया, बोलने लगेंगे हो जाएगा। मेरे दिमाग में कुछ ज्यादा ही हाई है यार, उतना नहीं लिखेंगे। Group 2 is ready. ये भी बोल सकते हैं, ये प्रोड्यूस मोशन जैसे कि इसका यूज देखेंगे ना, क्या देखेंगे। 2-3 यूज लिख लीजिए और उसमें थैंक्स किसको देंगे वो, जैसे सोलर एनर्जी आ गया, सोलर प्लेट आ गया, सोलर बैटरी, सोलर कार आ गया, उसके बाद सोलर कुकर है, सोलर रिस्ट वॉच है, ये सब प्लांट्स वाला भी दे सकते थे। हाँ प्लांट्स जो है ऑक्सीजन देता है, थैंक यू टू गॉड हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं ले सकते सर? इलेक्ट्रिसिटी हाँ Attention please. Everyone pay attention. यस You can recognize this diagram. What is this? Pendulum. And whenever we say about pendulum, so this pendulum gives us a lot of information. First one is that it tells about the time period, which is very important in our life. Time is said to be money. Yani time is money. It tells about the time. Yani time period. Second one is that there are 3 positions of this pendulum. Whenever pendulum is in middle, so at that time it is called mean position. Yes, it is the pendulum. When the bob is in middle, it is said to be mean position. Or whenever it comes outer of the both side, it is said to be extreme position. In our practical life, whenever you are in middle path, भगवान बुद्ध ने कहा है कि मध्यम मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है। So our life should be in mean position. It should not be in extreme position. It harms a lot because excess of everything is bad. है ना? अति रूपेना ऐ सीता, अति गर्वेना रावणा, अति दानाद बलिर्वधो, अति सर्वत्र This information had been given by the Mahan scientist Galileo. We all, our team members, have given him a lot of gratitude for giving a lot of information. One more thing is that it is very important in our practical life also. The person who has no base, it changes its parts according to his selflessness, according to his personal requirement. तो we give example कि पेंडुलम की तरह है, आदमी नहीं एकदम पेंडुलम है ना? तो it is not only for the science but also is important for the cultural life, but also in the practical life. In every section of life, it is very important. और this has been provided by महान साइंटिस्ट गैलीलियो और उनको कोटि ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। एक बार आपसे बहुत अच्छा मुझे आपके लिए बहुत तारीफ। थैंक यू मैडम, आपने मौका दिया तो धन्यवाद। गैलीलियो देखिए मतलब इन लोगों का कितना मतलब सोच सब लोग का डिफरेंट होता है, कुछ ना कुछ नया निकल करके आता है।
कभी इस तरह से आप लोग सोचे नहीं होंगे कि साइंस को पेंडुलम से जोड़ करके लाइफ स्किल को सिखा पाए, वैल्यू सिखा पाए। Good morning. We are taking देखिए हम लोगों को यहाँ साइन process करना था। photosynthesis for paying gratitude to the sun. Good morning. We are paying करिए दीजिए मैम, जब है तो कर दीजिए। our gratitude to the sun for the developing such a wonderful biosphere and greenery over the earth. Again, we are paying our gratitude to the air for mixture of the gases such as oxygen and carbon dioxide, which is very helpful and which is very necessary for our survival and the photosynthesis. So we are going to act as the photosynthesis. For photosynthesis, just on the plant and different component of for the photosynthesis, we have to take water, carbon dioxide. In plant, it is the chlorophyll, and that is the sunlight which is given by the sun. So she is acting as the water. First of all, photosynthesis. For photosynthesis, it is the water. Okay, plant and plant. She is saying, I can be squeezed and water. I can be squeezed and can go anywhere. Even inside the ground, in the roots, under the soil, and inside the deep of the earth also. I am very helpful. In daily life, I have too much importance. Even I can be present in the invisible air also. But I am useful. Then the component is the CO2. That is saying, I am CO2 and I am invisible but play an important role, very important role for the survival of the every living being. Then next component is the chlorophyll, which is present in the green plant. Yes, and chlorophyll gives green pigment to the plant, Yes. and I have ability to tap the sunlight. I tap the sunlight, and Yes. this sunlight gives us energy, Yes. and I help in the process of photosynthesis. Synthesis. And in So- this way, carbon dioxide and water combines together to form oxygen, which and energy, that means carbohydrate, which gives energy to all living beings. And in this way, the world is running smoothly. And we all are. So we all are paying gratitude to the nature for developing such a Biosphere. wonderful green pigment, that is the chlorophyll. Then, not in the end, but in the beginning, I have told about the sun, that we are paying gratitude to the sun. Again, sunlight, that is captured by the chlorophyll inside the leaf. So we are paying lastly gratitude to the God, that is the sun, so that we are We are surviving present here here, our and we are survival is getting wonderful vegetable, not possible. fruits, and all biosphere gets survived by this process. इसलिए हम लोग छठ पूजा करते हैं। Yes, that is the reason. Ultimate source of energy. The microorganism. So पहला lactobacillus bacteria, which is done by man. Hi, I am Lactobacillus bacteria. I am just used in making probiotics. My name given as a Lactobacillus by Bacillus Calmette-Guerin, that was a very famous scientist. Name Lactobacillus is given by that scientist. I am bacteria, I just helping making probiotics that I use for making a disorder of the stomach and the dysentery, diarrhea. I just protect the health and immune system, maintain the immune system of the body. In this way, I just help in gratitude in making the healthy body. Next, I am yeast. It is a bacteria which is very microorganism which comes under fungus. It helps in fermentation process, which helps to produce alcohol. I am feeling gratitude to the yeast, so that small organism helps in production of alcohol.
It helps in. It helps in. No, always it is not bad. In the home, we all enjoy idli and dosa. Idli and dosa, that batter is fermented by that yeast, and we enjoy many food items from this. Even pizza also. Yes, pizza, idli, dosa, and after that, this small microorganism. After that, we as we move forward, then this small microorganism helps in our research purposes also. That cloning probe. It is all possible because of this tiny organism, that is microorganism, that lead to development a special scope of biology, that is genetic engineering, and helps in many medical treatment and all those facilities and things which is apart from that humans. For example, humulin जो मिलता नहीं है हमें, तो अब इनके सहायता से humulin बड़े पैमाने पे बन रही है और लोगों तक पहुंच रही है. So we show gratitude to this tiny organism, tiny but many valuable. Also waste in production. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And production of vitamin B complex fermentation helps in easy digestion. जैसे आप जब ये ना कोई नहीं निकलिएगा. जिसकी मॉर्निंग हम लोग कल फिर मिले ही हैं, ठीक है, कुछ लोगों को देखा गया है, प्लीज इस बात का ध्यान रखें. तो ग्रुप डेवलपमेंट से जैसा कि हम सभी, अगर हमारा दिन शुरू होता है तो हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं. अगर हम शुरू कर रहे हैं अपना दिन तो लाइट ऑन कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है. तो वी शो अ ग्रेटिट्यूड टू द इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. हमें एक चाय भी बनानी है, उस वक्त भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है. तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ का जो है वो पार्ट बन चुका है आज के टाइम पे. उसके बिना हम कुछ इमेजिन नहीं कर सकते. अब जैसे कि मैम जब प्रेजेंटेशन दे रही थी, कुछ लिखने के लिए दी थी, तो लाइट चली गई थी. सबके पास आईज है, फिर भी सारे लोग ब्लाइंड हो गए थे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, लाइट चली गई थी. तो अब कैसे लिखते, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है. तो अगर ये ना हो तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है. वी शो ग्रेटिट्यूड टू द इलेक्ट्रिसिटी. हम थैंक बोलना चाहेंगे यहाँ जो भी हमारे एमपीज हैं. बहुत पहले क्या होता था कि अभी जहानाबाद में प्रिंसिपल सर हैं, वो हम लोग के ये होते थे, एमटी होते थे बहुत शुरू में. लेकिन अब हम लोग क्या हो गया कि राजीव सर हैं और प्रभा मैम हैं, रितु मैम हैं, और भी मैम लोग हैं. तो इन लोगों से हम लोग को इतना आइडिया मिलता है जिसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग क्लासरूम में करते हैं, बहुत आसान हो जाता है काम. ये बहुत अच्छा है. तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा हम देना चाहेंगे धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड देना चाहेंगे कि इन लोगों से हम लोग आपस में मिल करके कुछ नया चीज़ सीख करके यहाँ से जाते हैं. इस बार हम 2 चीज़ सीख के जा रहे हैं. एक चीज़ सीख के जा रहे हैं कि क्लासरूम को कैसे हम मैंने एक्टिव क्लासरूम बनाए. इसमें राजीव सर ने कहा कि हम एक दीपक सर ने कहा कि अगर एक हम ब्लैंक चार्ट पेपर ही ले जाएंगे तो बच्चों के जिज्ञासा रहेगा कि सर क्या बताने वाले हैं. एक अच्छी बात बताए सर कि क्लास को हम ऐसे कर सकते हैं. ये हम सीख के यहाँ से जा रहे हैं. पिछले में भी सीख के गए थे और क्लास में उसको हम इम्प्लीमेंट भी किए थे. दूसरी बात कि जब रितु मैम जब आती है हमारी क्लास में तो बच्चों को लगता है कि इस बार का जो मैंने सीसीए होगा इसमें कुछ नया चीज होने वाला है और बच्चे उसी दिन से ही बनाना शुरू कर देता है. मैम का आया दिए, तो ये उनको धन्यवाद देना चाहेंगे. मेरे क्लास के बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया और उन्होंने इसको मैंने स्पेस भी दिया है. उन्होंने जो स्कूल का वीडियो बनता है, कहने का मतलब ये है कि जो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो आज हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे जीवन का, इतना आगे नहीं बढ़ते. आज अमेरिका जैसा देश है,
जहाँ पर जो ट्रेन चलती है इलेक्ट्रिक से, तो उस ट्रेन के अंदर सारी व्यवस्था है, लाइब्रेरी है, आप जाके बैठ सकते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, वहाँ पर डिनर के लिए व्यवस्था है, खा सकते हैं, और मैंने हर चीज वहाँ सुविधा है। आप वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम है, आप वहाँ मीटिंग कर सकते हैं, क्लासरूम है, आप क्लास चला सकते हैं, आज वाईफाई है, आज माने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है गजेट है, जिसके सारे हम तुरंत मोबाइल से हर चीज देख लेते हैं, बताते हैं कि हमारी गाड़ी यहाँ है, जीपीएस सिस्टम से। ये सब तब आया जब इलेक्ट्रिसिटी आया, इसलिए बिना इलेक्ट्रिसिटी का जीवन के बारे में कल्पना करना हमारे मुश्किल पास है। सारी चीजें, हाथ है, पैर है, फिर भी हम अपाहिज हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो। और लास्ट में थैंक्स टू बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने फ्रैंकलिन डिस्कवर इलेक्ट्रिसिटी को किया। थॉमस अल्वा एडिसन को, जिसने हमें इलेक्ट्रिक बल्ब बना के दिया, और इसके सारे हम बच्चों को बताते हैं कि लाइट का क्या उपयोग है। हम जब भी क्लास से बाहर जाएं तो फैन को, लाइट को ऑफ कर दें, ये बच्चों को बताते हैं, थैंकफुल देते हैं। हाँ, जैसे सेव कैसे लगता है, कंजर्व कैसे करते हैं। मोरल वैल्यू एजुकेशन, हाँ, मतलब वैल्यू एजुकेशन से भी जोड़ सकते हैं। तो हाँ, स्विच ऑफ करके जाते हैं, एवरी डे करके जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, group. It was wonderfully presented and in this way, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि साइंस के चैप्टर से पेंडुलम वाला बहुत शानदार था, फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा। राजीव सर को बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने हमें बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत माने तकनीकी शब्दों से हम लोग को इंप्रेस करते हैं, और हम उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लासरूम में करते हैं, हम करते हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। हाँ, चलिए, तो मैं ये सेशन काफी लंबा चल गया है, और मुझे लग रहा है कि ये देखिए, ये लोग का नाम भी हम लिखे अपने तरफ, जो लिखने के लिए दो लोग थोड़ी थे। हाँ, हाँ सर, एक मेरे राजस्थान है, एक मेरी दुश्मन है, ये लोग दो लोग कोई बहुत है, ब्रेव है, एनर्जेटिक, हमेशा मदद करते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत होता है मतलब बोलने में है कि अच्छा नहीं, वो उनसे बोलने में डर लग रहा है, मैं बोल के आता हूँ। चलिए, बहुत शानदार रहा ये आप लोगों से इंटरेक्ट करना। हालांकि बहुत सारे लोग रह गए हैं जो ग्रेटिट्यूड के बारे में, हाँ, ओपन हाउस में बोल सकते हैं, लेकिन ओपन हाउस का मौका मिले ना मिले, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड व्हाट एवर नेम यू हैव रिटन, मेक द लिस्ट लॉन्गर। आपने जो 2 नाम लिखा है ना, वो लिस्ट को लंबा कीजिए। लंबा करने के बाद उसके ऊपर बिना काम के काम नहीं चलता है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपने नाम लिख लिया, वो लिस्ट को लंबा भी कर दिया, लेकिन उस लिस्ट का कोई फायदा नहीं इफ यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट इन योर डेली लाइफ। आपका टॉपिक ही इतना सुंदर है मैम कि इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, और बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर आई, हम लोग को बहुत फायदा हुआ इससे। आपने ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कराया, ये एक नया इन्विजन, मैंने हम लोग को पता नहीं चलता किसके दिमाग में क्या आइडियाज आ जाए, तो मुझे लगा कि अरे ये सब भी किया जा सकता है क्लास में। उनका मुझे बहुत अच्छा लगा एक्सट्रीम, और ये वाला सन फोटो से ऑलमाइटी सन इज द अल्टीमेट सोर्स, उसी के कारण सारा लाइफ है। तो हम लोग ग्रेटिट्यूड बच्चों को सिखाए कि यही है ग्रेटिट्यूड, और इस ग्रेटिट्यूड हर छोटे मोटे चीज को हम लोग धन्यवाद देते चले, ताकि हमारा लाइफ सुंदर हो जाए, हम लोग एट पीस हो, सुखी हो, और जो सुखी इंसान होता है वही सुख फैलाता है, स्प्रेड हैप्पीनेस। सो इस कमरे के जर्रे जर्रे को सलाम, हर इंसान को सलाम। आपको भी सलाम, आपको भी सलाम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स टू रितु मैम।